آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی خبر۔ کیرل کے راجپال عارف محمد خان نے آج مولانا شہاب الدین دوارا لکھی گئی کتاب مفتی اعظم اور خلفاء کا وموچن سرکٹ ہاؤس میں کیا۔ اس افسر پر انہوں نے بتایا کہ مفتی اعظم ہند کو کون نہیں جانتا، پوری دنیا میں کیرلا کی سرزمین کے ہر ویکتی جانتا ہے اور ان کا ڈنکا پٹا ہوا ہے، اس لیے ہم لوگ کو ان کے بتائے راہ سے پر ہی چلنا چاہیے۔ ہم آپ سے بات کر لیں گے، ابھی لے لیں گے دوبارہ سے۔ ٹھیک ہے آجا بیٹھ جاؤ سب۔ میں اپنی بات شروع کروں۔ یہ تھوڑا اور آپ کہیں گے تو آپ دھکا کو دے رہا ہے سامنے وہی تو رکے رہا شروع کرے نا کیمرے کا کہنا ہے یار۔ ارے نیچے رہو نیچے رہو۔ آپ لوگ آگے آگے ہٹاؤ۔ آپ نیچے کرنا تھوڑا، اس میں ہاتھ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آجاؤ بیٹھ جاؤ۔ میں نے اس کے فوراً بعد شہاب الدین صاحب کو فون کیا کہ شہاب الدین صاحب آ تو رہا ہوں شاہجہاں پور، لیکن رات کو بریلی رکوں گا تو شام کو یا صبح کو ملاقات تو کروں گا ہی، لیکن آپ جس کتاب کا ذکر کر رہے تھے مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء، وہ بھی اگر آپ چاہیں تو اس موقع پہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ پروگرام آج صبح ہو رہا ہے کہ جس کتاب کو دنیا میں اتنی بڑی تعداد ہے، وہ کتاب ان کا عقیدہ ہے، اسے وہ اگر میں سنسکرت کا لفظ استعمال کروں تو اپوروش مانتے، وہی مانتے، خدا کی کتاب مانتے، خدا کا قول مانتے۔ اس کی شروعات ہوئی اس سے ہے، پڑھو، اپنے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور علم کی کیا اہمیت ہے، میں نے ایک بار دلی میں ایک ذکر کیا تو ہمارے ایک اب وہ نہیں رہے، راجیہ سبھا کے ممبر تھے، جین صاحب، ڈاکٹر جین، فزیشین بھی تھے بڑے۔ اگلے دن صبح کو میرے گھر آ گئے فون کر کے، اور مجھ سے کہا کہ عارف بھائی کل آپ نے ایک حدیث سنائی تھی، ذرا میں اسے چاہتا ہوں لکھ کے دے دیجیے۔ گھر آئے ڈاکٹر ڈی کے جین، جو جین ٹی وی بھی ایک زمانے میں آتا تھا، وہ انہی کا تھا۔ تو کسی نے ہماری تعریف میں کچھ کہا تو میں نے کہا بھیا یہ علم کے بارے میں تعریف کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں سورہ کہف ہے، آپ نے زیادہ تر پڑھا ہوگا، اس میں ایک قصہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی سفر کی داستان ہے، جس میں جس ناؤ سے وہ جو لوگ اگر خالص مذہبی ہوں تو نام لینے میں، جس جگہ پہ ہوں وہاں ایسے لوگوں کا نام لینا جو سیاسی بیانات دیتے ہوں وہ میرے لیے مناسب نہیں۔ میرے پاس آئے اور مجھ سے انہوں نے بڑی پیاری باتیں کری، ایسی باتیں کریں جو میری انا کو اپیل کریں گی۔ ارے بھائی آپ کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور آپ کی صلاحیتوں کا استعمال ملت کے لیے ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا آپ سب بات منظور آپ کی، آج ہی قبول،
आप एक बात कबूल कर लीजिए। बोले क्या? मैं कहा मैं आपकी तंजीम का ऑर्डिनरी मेंबर बनने को तैयार हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कुरान की इस आयत को तस्लीम कर लीजिए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हम इंसानों के लिए काम करेंगे बगैर किसी भेदभाव के, अपने लिए कुछ नहीं मांगता। मैंने कहा मैंने फिर एक हदीस भी, हाँ मैंने एक हदीस भी सुनाई उन्हें। मैंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और किससे कहा? हकीम बिन हजाम से, हजरत खदीजा के भतीजे जो बहुत ही रईस थे। जगह हकीम अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुल सुफला, ऊपर का हाथ हमेशा नीचे के हाथ से अच्छा होता है। और ऊपर का हाथ कौन हाथ है? जो देता है। और नीचे का हाथ कौन है? जो मांगता है। मैंने कहा इसको अपना उसूल बना लीजिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आप तो हर वक्त बात करेंगे हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे जुल्म की कहानियां जब बयान होती हैं तो ऐसे लगता है जैसे अल्लाह के अलावा कोई और बड़ी ताकत है जो अल्लाह के फैसले को बदल के हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। अरे भैया, तौहीद का अकीदा ये है कि अगर मेरे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं तो वो मेरे आमाल का नतीजा है। अपने आमाल पे नजर डालो, अपने आप को दुरुस्त करो। और साहब मत भूलिए, कभी मत भूलिए, इंसान को जो चीज फ्री में मिलती है वो उसकी कदर नहीं करता। मानिए यूगर में पैदा हुए होते, थोड़ी देर के लिए मानिए, छोड़ दीजिए, मैं उसकी भी बात नहीं करता, यूगर की चाइना की भी बात नहीं करता, थोड़ी देर के लिए मानिए। मैं बहुत 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 दुख। अरुण शौरी ने आला हजरत के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल के खिलाफ हम लोगों ने मार्च किया था और फिर उसके बाद फसाद हो गया था। मगर इल्म का जवाब इल्म से होना चाहिए, इल्म का जवाब एहतजाज से नहीं। तो उसका जो है सही असल जवाब, आला हजरत के दिफा में अगर कोई खड़ा हुआ उस वक्त और आला हजरत की हिमायत में, आला हजरत के समर्थन में अगर कोई शख्सियत थी जिसने कलम उठाया, वो यही शख्सियत थी जो आपके सामने बैठी हुई है, जिनका नाम आरिफ मोहम्मद खान है। इन्होंने उसी अखबार में, जिस अखबार में आला हजरत के खिलाफ अरुण शौरी ने आर्टिकल लिखा, उसी अखबार में आपने भी आर्टिकल लिख करके आला हजरत की हिमायत में और उनके समर्थन में आपने अपने कलम की चौलानियां बिखेरी और अपनी निगारिशात के जौहर दिखाए। वो अखबार का तराशा आज भी मेरे पास मौजूद है। आया था कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, तो क्या आप भी हिंदू राष्ट्र बनने की बात कर रहे हैं? मैंने जो कहा वो ये कहा था कि सर सैयद ने आर्या समाज की मीटिंग में ये शिकायत करी। जब उनको रिसेप्शन दिया गया, उन्होंने कहा मैं हिंदू को मजहबी लफ्ज नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला, हिंदुस्तान की ज़मीन का अनाज खाने वाला, हिंदुस्तान का पानी पीने वाला, हर किसी को यह हक है कि वो हिंदू कह सके अपने आप को। मैंने सर सैयद को कोट किया था। चलिए सवाल पूछ लिया अभी। सर दरगाह से जुड़े मौलाना तौकीर साहब हैं, वो 15 मार्च को झंडा यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब मुसलमानों के खिलाफ भाजपा जो है अच्छे काम नहीं कर रही है और वो जुल्म कर रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप तो मीडिया वाले हैं और आपकी समझदारी औरों से बढ़ी हुई होती है। मेरे ख्याल से मैं बोल चुका उस बारे सर, थोड़ा सा नहीं, मैं बोल चुका। अगर आप उसको नहीं पिकअप कर रहे तो और बोलने से फायदा नहीं है। हाँ। सवाल मेरा है कि बीते समय पहले मातम का तर्जुमा किया है और दारुल उलूम देवबंद नदवतुल उलमा आप भेज चुके हैं। आप बरेली में हैं, क्या मरकजी दारुल इफ्ता जो है यहाँ उस पर बात करें? सब सारे विकीपीडिया नहीं, सारे पीडिया में मौजूद है, बमे ब्रिटेनिका के, अब वो सब जगह मौजूद है। मैंने तो पूछा, मुझे ये बताइए इस वक्त किस चीज़ पे एतराज़ है। मैंने ये नहीं कहा ये वंदे मातरम का तर्जुमा, मैंने कहा ये किसी का गीत है, वो बता दी। वो कहा इसमें कोई काबिल एतराज़ नहीं।
खत्म हो गया सर। अब उसको काहे को जो चीज़ है उन्होंने खुद ही मान लिया काबिल एतराज़ नहीं है, उस पर क्यों दोबारा कंट्रोवर्सी पैदा कर? कुछ ऐसा कहा नहीं गया नहीं छोड़िए, जब जनरली मान लिया गया तो छोड़िए अब उसको। उत्तर प्रदेश में जैसे भी प्रयागराज में डबल मर्डर हुआ, उनके आरोपियों के घर पे बुलडोजर चल, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन के कामों पे बोलना मेरे लिए उचित। भारत में पहली बार हमें मेजबानी दी जा रही है G20 के लिए एज ए गवर्नर, आप क्या कहेंगे? प्राउड? मैं जाहिर है हमारे लिए बहसियत देश के हमें जितना गर्व करेंगे जल्दी बताइए। मुझे मिश्रा जी ने कहा था, लेकिन भाई आप एक बात कुर्सियाँ डलवा दें सामने, हो गया, छोड़िए जल्दी से पूछिए। नाजिया अरे भाई पूछिए ना। आज किताब का विमोचन नाजिया आ गया, केरल से आप आए हैं, खास तौर से क्या कहेंगे इस पर? मैं इतनी देर बोला हूँ, जो कहना था कह दिया, और क्या कहूँ? हजरत आज का जो कश्मीर के पंडितों पे आप अभी जिक्र कर रहे थे, इजरा किया है आपने, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, किस तरह की किताब है जिसका आज आपने इजरा किया है? देखिए मेरे नज़दीक ये, मैं इस तरह कहूँगा कि इस खानवादे ने अपने आप को इल्म के ज़रिए दीन और अल्लाह और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ किया इस खानवादे, और ये मेरे नज़दीक सबसे मदद जो, और इन्होंने हमारे शहाबुद्दीन साहब ने इसको किताबी शक्ल दी है। मैं बहुत खुश हूँ इसलिए भी कि ये इनका इल्मी कारनामा है, और इसलिए भी कि ये बहराइच के हैं, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरा भी कुछ ज़ाती हिस्सा है। कश्मीर पंडितों पे आपने कहा कि उनको हटाएगा, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप ज़रा इसकी सोचिए, कुरान की आयत पढ़िए और सोचिए कि जो लोग मजबूर किए गए रात के 12 बजे अपने घरों को छोड़ने के लिए, उसके बाद अल्लाह की सज़ा आएगी या नहीं आएगी? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो और कुछ नहीं कहा भाई। लेकिन उन्होंने जन्नत जाने की बात कह के ये सब जुल्म किया था। भाई तो वो बताए ना, कोई आयत वो भी पढ़ दें। मैं तो आयत पढ़ रहा हूँ ना, वो अपने दिमाग से बता रहे हैं, मैं अपने दिमाग से नहीं बता रहा। सर इस किताब को लेकर जनता में क्या संदेश है आपका? जी, इस किताब को लेके आवाम के हित में अब ये पढ़ेंगे लोग, अच्छा पढ़ना चाहिए लोगों को, और मैं कह रहा हूँ कि इन किताबों को पढ़ें। मैं तो सख्ती से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए, किसी किताब को मत छोड़िए, जितना आपको मालिक वक्त दे। इसलिए कि ये किताबें हिकमत, विजडम आपको सिखाती। जो किताब हज़ारों साल तक जिंदा रहे, उसको ये मान लीजिए आपकी ख्वाहिश से कोई किताब जिंदा नहीं रहती है। अपनी जो उसकी यूटिलिटी है, जो उससे जो फ़ायदा उठाते हैं, अगर आप कहें तो मैं मतलब पूछिएगा शहाबुद्दीन साहब से, मुझे हो रही है देर, लेकिन मैं कुरान को लेकर जिस तरह का मिसइंटरप्रिटेशन दिया जाता है, लगातार कुरान को कोई जला रहा है, कुछ तरह इस क्या वजूहात हैं जो सोसाइटी में इस तरह की चीजें हो रही हैं? चलिए आज जो पुस्तक का विमोचन हो रहा है, किस तरह की पुस्तक है, क्या छपा है इसमें, क्या संदेश देना चाहते हैं? आला हज़रत इमाम महमूद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी के साहबज़ादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खुलफ़ा और तलामज़ा के हालात पर ये किताब लिखी है। दरअसल ये एक तरीके से सूफिया का तस्करा है, और सूफिया के तस्करा पे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुफ्ती आज़म के खुलफ़ा हैं, उन लोगों ने काम किया है, उनकी खिदमात को सराहा है, उसको हमने मुरतब किया है। इसका नाम है मुफ्ती आज़म उनके खुलफ़ा, और इसका रस्म इजरा केरला के गवर्नर जनाब इज़्ज़त माब आरिफ मोहम्मद खान साहब के हाथों से हो रहा है। तो ये कोशिश ये है कि अभी ये उर्दू ज़ुबान में है और दूसरी ज़ुबानों में भी ये किताब छप कर के आए, ताकि पूरी दुनिया के लोगों के लिए सबक आमोज़ हो, लोग पढ़ें और अपनी नई ज़िंदगी को संवारें। क्योंकि अगर सूफिया की ज़िंदगी को संभालेंगे तो फिर उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी भी संवरेगी, नई नस्ल की तरबियत होगी। तो ये मेरी कोशिश है, अल्लाह ताला हमारी कोशिश को कामयाबी अता फरमाए। अभी फ़िलहाल उर्दू में है, कोशिश ये है कि उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में भी इसका तर्जमा हो। क्या संदेश है? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नई नस्ल को ये सबक दें कि सूफिया की तर्ज ज़िंदगी को अपनाइए। यही तर्ज ज़िंदगी जो है वो अपनी ज़िंदगी को मजबूत करेगी, देश को मजबूत करेगी, नई नस्ल को मजबूत करेगी। किसके द्वारा लिखी गई? ये किताब मैंने लिखी है।